our next first guest speaker, Professor Dr. Nasir Rizwan, Medical Director of Free Medical Research Center, Lahore. He is here to honor us with his presence. Please welcome sir and share your name with top winners. Assalamu alaikum everyone. I absolutely understand कि चाय के बाद कुछ खाने पीने के बाद वाली प्रेजेंटेशन होती है वो ऑडियंस पे कितनी गरम लगती है. But I'll try not to bore you. Or for those of you who were here in my last year's presentation, will probably remember that I didn't let you go to sleep. So I'll try to be as interactive as possible. आज का topic थोड़ा सा difficult है क्योंकि I am trying to build up the story about human consciousness from where I left it in the last lecture. और उस वक्त हमने बात की थी visual perception की, how we make an image of the world around us using our visual perception. उस visual perception से how we glean a meaningful understanding of the world around us. We talk about that today. Or it's not going to be an easy thing, so I'm going to try to put a lot of anecdotes in my talk so that won't dry, dull, pure scientific. Can we turn the lights down, please? अभी तो प्रातः के लिए कह रहे थे कि आपकी हर प्रेजेंटेशन दरअसल से शुरू होती है. But there is a reason why I put these keys there. क्योंकि ये आपको जो impending impact of hardcore science है उससे बचा के रखती है शुरू है. This is light, dots of light producing an image which gives us a meaning of something. I'm not going to go into that silly kind of philosophical detail. What do you all see? This is a picture of a park. Very serene, comfortable, relaxing. And if you happen to सुबह उठ के सैर पे कौन बन जाता है? I need a show of hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. For the rest of you, you need to wake up early and go for a walk every day. खास तौर पे ये sunrise है, इस दफा जो हमारा टॉपिक ही IBCC का है, वो brain health है. और this is something जो sensory experience है ना सुबह का, वो हम बहुत सारे लोगों से वैसे ही क्या कहते हैं वो experience लेते ही नहीं. So you all must. If you happen to go and take a walk in the park, what did that experience give you? Imagine yourself walking in the park. आंखें बंद करके थोड़ी देर imagine करने की कोशिश करें. Early morning with a gentle breeze, आपको हर तरह की chirping of birds की आवाजें आ रही हैं, हर तरह की smell आ रही है, green grass, trees, sunflowers. और वो हल्की सी वेव वो ब्रीज की आपके चेहरे पे हिट करती है. इट्स अ वेरी फुल सेंसरी एक्सपीरियंस. अब वो जो एक्सपीरियंस है आप उसको इंडिविजुअली सेंसरी परसेप्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्योंकि ग्रीन कलर की लाइट ने हिट किया तो मुझे पत्ते नजर आए, ब्राउन कलर की लाइट ने हिट किया तो मुझे दरख्त बात नजर आई. आई हर्ड high pitched sounds तो मुझे चिड़ियों की आवाज आई. I heard low rumbling तो मुझे पत्तों की आवाज. ये चीजें एक्सप्लेन कर सकती हैं. But the experience of being in the park, having that pleasure of having that breeze in your face, you can't explain that. And science can't. So ये जो सारा sensory experience है, अगर हम इसको साइंस में या किसी भी तरह अल्फाज में ढालने की कोशिश करें तो आप उसके कंपोनेंट्स को तो डिस्क्राइब कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस इज, क्योंकि वो हर बंदे का एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है. इट्स समथिंग इंटरनल
and science fails to put words to it. Any attempt to describe it in whatever amount of detail fails miserably to give you an essence of the experience. Because वो experience, external perceptions पे dependent नहीं है. Even science को अगर हम और बहुत सारी डिटेल में चले जाएं, molecular mechanism भी understand करते हैं, जो कि आपने अगले 2 दिनों में बहुत सारी talks में सुनी है, ये सारी चीजें. उसके बावजूद जो हमारा conscious experience है, वो scientifically explainable नहीं है. So, but our description cannot tell you what it is like to experience that thing. और जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हो तो वो एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है, साइंस रह जाती है. So that experience is what our consciousness perceives. मेरा नाम डॉक्टर नासिर रज़ा वान है. I'm a professor of neurosurgery at Sharif Medical City and I teach neuroscience to computer science people at NICE. Oddities, but that's what I do, and that's actually that part I love more than practicing my clinical medicine. So I also run a small non-scientific startup called Spinacure, where we are trying to treat people with spinal ailments without surgery. Coming from a neurosurgeon, this may again sound very odd and paradoxical, but yes, we try to do that. Okay, going back to that experience. हम जितनी मर्जी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, देने की कोशिश करें, वो एक्सपीरियंस चूँकि इंटरनल है, सब्जेक्टिव है, वो हम किसी भी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते. आप जो पानी पीते हो तो उसकी जो ठंडक अंदर, ये सारी चीजें, how do they give you that experience? How do we define what that experience is? And how do we know actually what is? गैलीलियो को आप लोग किस तरह याद करते हैं? ये वो बंदा था जिसने पत्थर और वो पर फेंका था वो टेढ़े से टावर से और वो देखा था कि उनकी एक्सीलरेशन कितनी है. ये वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है इटली में. So Galileo was a scientist in Italy who was studying the natural phenomena. और ये वही इस theory of gravity है जो निकोला कोपर्निकस ने स्टडी करके उसके ऊपर बेस करके ये चीजें डिटरमिन की थी कि जमीन सेंटर में है या सूरज सेंटर में है और जमीन उसी की तरफ ऑफ कर रही है. Then there was this another guy called René Descartes. इसको हम René Descartes भी कहते हैं. ये वो बंदा है जिसने कहा था I think therefore I am. ये फेज आपने सुना होगा और ये लोग गुस्सा कि मैं सोचता हूँ शायद इसलिए मैं एग्जिस्ट करता. उसने थिंकिंग को एग्जिस्टेंस का क्या कहना चाहिए ओरिजिनेटर का कि यू ओनली एग्जिस्ट बिकॉज यू थिंक. दे बोथ लिव इन अप्रॉक्सिमेटली द सेम एरा. ये 1650s 1640s में दे वर the two people जिन्होंने साइंस की दो तरह से क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी. दोनों ने ये कहा था कि साइंस में दो तरह की चीजें आप डिस्क्राइब कर सकते हो. एक एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजें हैं और एक इंटरनल वर्ल्ड की चीजें हैं. एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजों को आप फिजिकली मेजर भी कर सकते हो, डिस्क्राइब भी कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो. बट द इंटरनल थिंग्स यू कैन नीदर डिस्क्राइब नॉर डिफाइन. You can only experience. Descartes ने भी इसी तरह कहा था और इसने उनको बकायदा नाम दिया था res externa और res cogitans. Cogitans है जो सिर्फ हमारी perception के अंदर feel हो सकती है. Anyway, defining consciousness is not an easy job क्योंकि वो internal है, क्योंकि वो अंदर की चीज है, वो सिर्फ experience के ऊपर based है. So we cannot tell कि जो मैं कॉन्शियसनेस फील कर रहा हूँ वही कॉन्शियसनेस आप लोग फील कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर मेरी बिल्ली को कॉन्शियसनेस फील करती है कि नहीं, या मेरे एक्वेरियम में मछली है उसको भी वो कॉन्शियसनेस की वही परसेप्शन है कि नहीं. बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग.
You can't describe it. My apologies जी, मैं बार-बार आगे पीछे नहीं कर रहा, ये रिमोट से हो गया. Okay. और this is a big dilemma, क्योंकि consciousness को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन consciousness को आप define ही नहीं कर सकते कि वो है क्या चीज जिसको हम पढ़ रहे हैं. David Chalmers 1995 में उसने एक पेपर लिखा था जिसके अंदर उसने वो जो हार्ट प्रॉब्लम जिसका मैंने जिक्र किया और एक इजी प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम में स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को डिवाइड किया. हार्ट प्रॉब्लम ही सेड वाज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्शियसनेस इज. होती क्या है, हम व्हाई कांट वी से कि ये पूर्ण कॉन्शियस नहीं है. इज इट बिकॉज वो मूव नहीं कर रहा? इज इट बिकॉज वो सोच नहीं रहा? So consciousness की definition, consciousness को समझना is the hard problem. उसके जो components हैं, जो mechanisms हैं, उसको उसने कहा जितने मर्जी complicated हो, but that's the easy problem. The easy problem is how does it emerge? वो brain mechanisms हैं, frontal lobe के कुछ networks हैं, sensory input की integration है, जो हमने last year जिसके बारे में बात की थी सर. So consciousness के mechanisms को study करना is simpler compared to defining what consciousness is. The easy problem, brain के different areas हैं, आपको isolated area के अगर आप function समझने शुरू कर दो, तो आपको overall organism के function समझ आने शुरू हो जाते हैं. Frontal lobe, executive function, occipital lobe, visual function, temporal lobe, speech and memory. इसी तरह motor cortex एक है जो सिर्फ movement को control करता है. Then there is an extrapyramidal system जो उसी movement को fine tune करता है. So ये चीजें आप physical location से तो study कर सकते हैं. इनकी integration से कैसे consciousness बनती है, we don't know. लेकिन और detail में चले गए तो वही जो physical अलग-अलग areas हैं वो कैसे आपस में link होते हैं, कहाँ पे positive feedback है, कहाँ पे negative feedback है. इस study को अलग एक नाम दे दिया हमने neural networks का. कि न्यूरल नेटवर्किंग कैसे होती है. उसके बाद और बारीकी में चले जाएं तो I saw the program and there are going to be some lectures on molecular neuroscience as well. So अगर और गहराई में चले जाएं तो molecular level पे भी आप चले जाएं तो आप synapse और molecules और किस तरह membrane को change करते हैं, कौन सा molecule है जो membrane को stimulate करता है, कौन सा molecule है जो membrane को suppress करता है. You can study all that. लेकिन इन सारे physical mechanisms से वो जो जिस चीज को हम consciousness कहते हैं, जो awareness है, जो मैं है, जो feeling वाली चीज है, वो कैसे emerge होती है, that we still haven't understood. That's why it's called the hard problem. Easy problem, simple. थोड़े से networks हैं, you can understand. ये डायग्राम सिर्फ इसलिए डाली थी ताकि एक तुम्हें थोड़े से सोते लोगों को जगा सकूं. दूसरा ये बताने के लिए कि जिसको हम इजी प्रॉब्लम भी कह रहे हैं, इट्स नॉट दैट इजी. इट्स जस्ट दैट इट्स डूएबल. ये हो सकती है. regardless of how complicated it is, we can still do it. और इसके दिखाने का मकसद ये है कि on the contrary, on the other side, the consciousness study, the understanding of consciousness probably doable भी नहीं है. Probably we can't understand based only on the existing physical nature of science. जब तक साइंस में कोई ऐसा कंपोनेंट क्वांटम फिजिक्स अब आनी शुरू हो गई है, मे बी हम किसी क्वांटम लेवल पे जाके तो कॉन्शियसनेस को भी एक्सप्लेन कर सकें, but not yet. We don't even understand the quantum phenomena well enough yet कि हम उसको correlate कर सकें with something as complicated as consciousness. So easy problem के हमें बहुत सारे fruits मिले हैं. Easy problem से हमें mechanism समझ आ गए. हम psychiatric illnesses, neurological illnesses को समझना शुरू हो गए. हमें circuits का पता चल गया. हमने उन circuits को tweak करना शुरू कर दिया. हमें पता चला कि tweak करने का एक तरीका chemicals भी है. हमने दवाइयाँ बनानी शुरू कर दी. So easy problem, although it was difficult, लेकिन उसके हमें बहुत सारे physical results मिलने शुरू हो गए. और easy problem में we can study
study all the senses, starting from touch to taste to smell to vision to hearing. इसी तरह movement, however intricate, however complicated, you can still study that movement, balance, movement, ये सारी चीजें. इसी तरह हमारी cognition, हमारी understanding, हमारी intelligence, intellect, ये चीजें भी हम to a very decent extent समझना शुरू हो गए. And also our internal perceptions, internal environment. भूख लगती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, नॉस्ट्रा होता है, ये सारी चीजें जिस तरह होती हैं वो भी हमें अब समझ आनी होगी. बट ये सारा कुछ मिला के दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द इजी प्रॉब्लम. हार्ड प्रॉब्लम है कि इन सारे मैकेनिज्म से मेरा सारा ड्रामेटिक इफेक्ट, इन सारे मैकेनिज्म से कॉन्शियसनेस कैसे इमर्ज करती है. We have not been able to understand that yet. So that is why it is the hard problem. How many of you now, I once again, सिर्फ 2 मिनट और रह गए हैं presentation के, once again I want a show of hands. How many of you can see that picture there and make an idea about what it may be? Any guesses? Any volunteers? So it's very hard to tell given the small amount of information that a part of the picture gives. Okay, how about now? Sorry? This could be a face showing some part of the facial expression. Excellent. Anybody else? Any other takers? बोलो बच्चे, गैस तो करो. हाँ, यहाँ से गले का पार्ट लगता है. गले का पार्ट भी लगता है, बिल्कुल ठीक. This could be a look deep inside the throat, and this could be a part of the throat. हाँ, अब आप बोलने शुरू हो गए हो क्योंकि पहले बहुत ही limited information थी. We could not make out what it is. Now we have a little bit more information, and now we can at least start to guess. अगर आप गौर से देखें, ये अब यहाँ पे लाइट की वजह से probably सही नजर नहीं आ रहा. These are boats. This is an aerial view of a lake with rocks in it. और ये boats हैं, right? ये अब जब ये boats नजर आती हैं पहली दफा, वो इफेक्ट ही इस वक्त स्क्रीन पे नहीं आ रहा. But the first time I saw this picture, इसी तरह आदि पहले देखी, but then when I started looking at the boards, the first thing that occurred to me was, oh wow, इसका मतलब है rocks के दरमियान कितनी गहराई होगी, नीचे कितना स्केरी होगा, पता नहीं नीचे लाइट भी होगी कि नहीं होगी. So एकदम एक आपको एक वंडर का एलिमेंट मिलना शुरू होगा. ये बोर्ड्स हैं और वो इस मोमेंट को हम साइकोलॉजी की तरफ से आहा मोमेंट कहते हैं. जब किसी चीज की टर्म समझ आ जाती है, इसको कुछ बुक्स में यूरेका मोमेंट भी कहा जाता है. यूरेका किस तरीके से होता है? Archimedes, right? Archimedes. So जब किसी चीज की समझ आ जाती है तो उसको आहा मोमेंट कहते हैं. ये जो आहा मोमेंट है ना, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, उनके मैकेनिज्म्स, उनके न्यूरल नेटवर्क्स को आप सब कर सकते हो. लेकिन what suddenly changes when with the same input you start to make sense of something and you start to say, ये तो मेरी दादी अम्मा की तस्वीर है, right? आप चेहरा देख रहे हो, आपको थोड़ा सा पता चल रहा है, ऐनक familiar लग रही है, आपने बचपन में कहीं देखा था अपनी दादी अम्मा को, and suddenly साथ आप अपने हालत को खड़ा देखती हो और आप yes. This is हमारी perception is a creative process. भी मैं quickly गुजर जाऊंगा क्योंकि ये वो सारी slides हैं जो हमने last time बात कर ली थी कि हमारी जो perception है वो passive input नहीं है. Our perception is actually an active phenomena that makes sense of whatever little sensory input we get.
और वो ब्रेन उसको ट्रीट करता है। यही डिफरेंस है between a picture taken by an Android camera and a picture taken by an iPhone camera. Android cameras are far superior than an iPhone camera. But somehow, when you take pictures with both phones, iPhone picture comes out as nice, as crisp, as colorful as an Android picture. हालांकि उसकी मेगापिक्सल भी थोड़ी है, उसकी रेजोल्यूशन भी थोड़ी है, मैग्निफिकेशन भी थोड़ी है, but the trick lies in the iPhone software. The software tweaks that picture कि वो लाइट को भी adjust करता है, वो हमारा ब्रेन देखता है. So हमारे उन signals को वो tweak करके make sense. So ये आपने सारी वो चीजें देखी होंगी कि ये भूटान है या तो बंदों के चेहरे हैं. It depends on how you look at them. Similarly, इसमें से छोटी कौन सी है? ये सब देखे हुए हैं, ये बचपन में हम सारे एक दूसरे को दिखाए. Apparently ये दोनों बड़ी छोटी लाइनें हैं, but they're exact same length, just because the arrows give us the illusion कि एक बड़ी है एक छोटी. कैप्शा अक्सर जगहों पे आपको रजिस्टर करते वक्त ये दिखाया जाता है, बताओ कितने मोटरसाइकिल नजर आ रही हैं तस्वीरों में, या ये क्या वर्ड्स लिखे हैं. बिकॉज जो कंप्यूटर अपनी इनपुट से लेता है वो सिर्फ उसका लिटरल मीनिंग निकाल सकता है. वो एंड्रॉइड कैमरा है, और जब इंसान देखता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में से भी W ढूंढ लेता है. सो ह्यूमन आई इज नॉट जस्ट द पैसिव कैमरा. ह्यूमन आई कैन इंटरप्रेट थिंग्स. सो इसलिए वो इस तरह की चीजें दिखा के डिस्टिंग्विश करते हैं कि कोई ऑटो जनरेटेड प्रोग्राम तो रजिस्टर करने की कोशिश नहीं कर रहा है. इट्स अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैप्शा. कैप्शा का मतलब पता है? Completely automated public viewing test to tell computers and humans apart. ये मैं सिर्फ बनाया नहीं है, this is actually what it is. It's called a captcha. आई के mechanisms सिर्फ आई के physical mechanisms नहीं हैं. It's actually the neuronal network behind it. ये सारी चीजें हमने last presentation में देखी थी. For example, I'll just stop here. What do you see here? Sir, it's a tunnel. Anyone else? Yes, it's a tunnel. और कोई आपको और किसी को कुछ और लग रहा हो? लॉबी है उसके साथ. ये नहीं लगता कि ये किसी विंडो से हम देख रहे हैं और शीशे के ऊपर दायरे बने हुए हैं. लग रहा है ना? आप कह नहीं रही थी, मैटर कहें, ऊंचा कहें अगर कहना है. Sir, this is actually a mirror. This may be a mirror looking back, but where are you in the mirror? Just in this video. We don't see anybody in the picture, but yes, this will be a mirror. Exactly. देखिए, अगर मैं आपको इसकी रियलिटी दिखाऊं, this is what it is. It is so weird. This is actually a room which has lines drawn all over the walls, the floor, the roof. और जब आप एक certain vantage point से देखते हो तो आपको वो सारी लाइन अप होके सर्कल्स बनाते हैं. Yes, and आपको वो सर्कल्स लगने शुरू हो जाते हैं कि ओह ये तो सर्कल्स हैं और पीछे अगर हम इसको दोबारा भी देखें, no matter how well you understand the mechanism, you still can't put yourself to visualize this room कि ये दीवारों पे लाइनें लगी हैं, ये फिर भी वो सर्कल्स ही लगते हैं. Because that's how our brain tries to interpret things. ये वो चीज़ है जो आपने क्रिकेट ग्राउंड में आजकल देखा होगा, जब मैच हो रहा होता है तो जो बॉलर के पीछे एड्स लगे होते हैं ग्राउंड के ऊपर, वो एड्स एक्चुअली दे आर पेंटेड ऑन द ग्राउंड. बट जब कैमरा उनको एक खास एंगल से दिखाता है तो वो उस एड को अगर आप कैमरे वाले एंगल से देखो तो वो आपको लगता है कि एक बोर्ड खड़ा हुआ है राइट इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड. इट्स नॉट एक्चुअली अ बोर्ड, इट्स अ वियर्ड डायमेंशंस की ड्राइंग ऑन द ग्रास, लेकिन वो उस एंगल से लग रही है कि वो बोर्ड बना है. सो हमारा ब्रेन बड़ी जल्दी जो खुद इंटरप्रेट करता है तो उसको अगर आप प्लान करके ब्लफ करने वाली इंफॉर्मेशन दो तो बड़ी जल्दी फूल होता है. Because it tries to make sense and based on its own previous experiences, वो sense को बनाता है.
लेकिन कई को वो चीज़ें बोल नहीं होती। ये मिसाल आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी लास्ट ईयर दिखाई थी। ये बंदा और लेडी के साइज में जमीन आसमान का फर्क है, बट इट्स एक्चुअली नॉट दिस। बंदी इज सिटिंग वे अवे फ्रॉम द पर्सन और ये बंदा करीब खड़ा है। सिर्फ इस एंगल में से तस्वीर ली गई है तो वो बिल्कुल लग रहा है कि कुर्सी पे बैठा। सो यहाँ पे हमें देखने के बावजूद उधर यही लग रहा है कि हाँ यार कुर्सी में बैठे। सो ये चीजें यूज होती है VR में, आपकी परसेप्शन को आर्टिफिशियली फीड करके 3 डायमेंशनल इफेक्ट से। ये सारी चीजें मैं गुजर जाऊंगा। साउंड के साथ भी हम ये कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी हेव दिस ईगल इफेक्ट। इसी तरह MC Escher was a very famous sketcher। पेंटर नहीं था, स्केच करता था, पेंसिल स्केच करता था, वुडन एंग्रेविंग्स करता था, प्रिंट्स बनाता था और ये as late as 1960s ये बनाता रहा है। और इसकी सारी ड्राइंग्स 3 डायमेंशनल हैं, यूजिंग द ब्लफ ऑफ परसेप्शन। इस ड्राइंग में आप देखो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, बट द राइट साइड इज ऑफ अ स्ट्रीट व्यू ऑफ एन आर्च एंड द लेफ्ट साइड इज ऑफ अ रूम बीइंग लुक्ड एट फ्रॉम द टॉप। आप अगर गौर से देखो तो ये वाली जो है ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, ये स्टेयर्स की साइड है, ये खिड़की है जो स्टेयर्स में खुल रही है। कैन यू सी दैट? और इस साइड पे देखो तो ये स्टेयर्स नहीं है, ये इस आर्च का निचला हिस्सा है। और देयर इज सिमेट्री। सो MC Escher इस तरह की 3 डायमेंशनल चीजों को यूज करके हमारे परसेप्शन को ब्लफ करने की बहुत ड्राइंग्स हैं। बट इन द वर्ड्स ऑफ T.S. Eliot, एक मशहूर पोएट था, ये सारी चीजें जानने के बाद हम घूम फिर के वापस लम्हे की तरफ आ जाते हैं। T.S. Eliot ने अपनी इस पॉइंट का उसकी पोर्ट्रेट है, कहते हैं we shall not cease from exploration। ये हमारे इंसान की इंस्टिंक्ट में है, curiosity is inborn। We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started, but no other place for the first time। हम अगर पहुंच जाते हैं, पहुंच के हमें वो आहा वाला मोमेंट होता है, अब सारी जिंदगी के एक्सपीरियंस के बाद हम उसको अप्रिशिएट कर सकें। सो इसमें से ये वर्ड्स सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने उनको बोल्ड कर रखा हुआ है कि वी शैल नॉट सीज फॉर एक्सप्लोरेशन। हम क्यूरियस लोग हैं, रियलिटी बड़ी वियर्ड चीज़ है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। एज ट्विस्टेड एज दिस ट्विस्टेड रिवर जो कि शाम को और खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली जब सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है everything, sorry, my apologies, everything gets mixed up and everything darkens। तो कोई तफरीक नहीं रह जाती देखने वाले में और देखने वाली चीज। आखिरी स्लाइड इसलिए जरूरी है कि इसको मैं अपने प्रेजेंटेशन का लास्ट वर्ड कहना चाह रहा हूँ। Again, another very rich photograph showing the same curving river but in a close detail with boats and people living there and mosque huts at the top of this rock. It's a beautiful sensory experience. लेकिन याद रखें अभी हमने जो बात की थी, it's a total world of illusion। और इस सूरह आल-इमरान में बहुत 1400 साल पहले अल्लाह ने बताया, science is only beginning to discover this now। This life of the world is merely an illusory enjoyment। It's not real। और हम लोग ये लोग अपने मज़हब को समझते हैं बिल्कुल बकरी चीज़ है और अल्लाह ने की बताई चीज़ को आप साइंस के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हो, ये कर सकते हो। बट आपको पहला एसेंशियल कंपोनेंट फेथ का साथ देना जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस से उसको साबित करने की कोशिश करते हैं और गलत जगह पर चले जाते हैं और कुछ साबित नहीं हो रही होती तो they end up at the wrong destination। So never take that destination। Thank you very much। University of Government College University, Professor Raj, the opportunity, special
डॉक्टर राम सैन साहब जो जिस तरह हर इवेंट में बुलाते नहीं हैं, वो कितना प्यार एक्सप्रेस करती हैं कि it becomes difficult to refuse. Sorry, one question. Sir, are we allowed to make questions के बाद में? Sir. John Fry. John Fry. Give an idea of conscious unconscious. He's pioneer. Sir, no, I wouldn't say he's the pioneer. He's one of the biggest thinkers on consciousness. लेकिन बात तो बहुत लंबी है. बात तो बहुत लंबी है. लेकिन अगर हम अपने Time was added, solved, and thought for the first time about human mind. Absolutely, sir. जो क्या नाम है मेरे नाम से स्किप हो रहा है. The guy who did a lot of research in 1960s on psychedelics. उसकी भी consciousness की theories again are considered to be the first comprehensive understanding of consciousness. But all these theories, as far as I know, have their drawbacks, have their flaws, because they can't explain it. Still not complete. Still They're more not complete. They're still, इस वक्त से consciousness के ऊपर पूरी scientific world में जितना literature consciousness पे आ रहा है, कहते ही हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना truth है, but I read it somewhere. बाकी सारी sciences combined उतना number of papers here out नहीं कर रही जितना just consciousness. So John Fry को इस बात को 6 years before Sir, I hope मैं 50 years before अपना डिस्प्ले करना चाह रहा था. ये हमारी न्यूरोसाइंस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमने कॉन्शियसनेस का पूरा एक सेशन रखा. एंड आई इनवाइट यू ऑल, क्योंकि ये जो हमारी न्यूरोसाइंस कॉन्फ्रेंस है, दिस इज पासवान्स कॉन्फ्रेंस. पासवान इज पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ अप्लाइड एंड बेसिक न्यूरोसाइंस. ये क्लिनिकल न्यूरोसाइंस, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी नहीं है. दिस इज बेसिक न्यूरोसाइंस, बेसिक रिसर्च. और अच्छी बात इसमें ये है कि आप जैसे साइंसदान हैं, हम जैसे डॉक्टर नहीं हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के लोग हैं, मोलेकुलर बायोलॉजी के लोग हैं. वो सब मिल के, जिस तरह आप लोगों ने ये फोरम रखा है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें सारे साइंटिस्ट कम से कम इंटरैक्ट करें. एंड द मोर वी इंटरैक्ट, द मोर आइडियाज वो बात हुई थी कि हम अपने अपने साइलोज में, अपने अपने कोनों गुजरों में बैठ के काम बहुत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट the only problem is we do not interact. उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है हमारे पास इंटरैक्ट करने के प्लेटफॉर्म्स नहीं. So we are trying to thank you very much to people like Dr. Ramsden. हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. Absolutely. And the more the flowers, the more beautiful. Thank you very much. Register करें, come to the hall, come to that conference, or see the wonderful work that the people are doing. और अभी किसी ने बात की थी, हमारे सर हैं फिजियोलॉजी सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बात की थी कि मैं एक्सेसिबल होना चाहता हूँ. तो मैंने भी अपनी स्लाइड्स के एंड में अपने कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं. यूजुअली से बात करना मुश्किल हो जाता है. दैट्स व्हाई आई गिवन माय व्हाट्सएप एंड माय ईमेल एड्रेस. शो सजाया है. हमारे कॉन्फ्रेंस को भी ओकेजन को बेस कीजिएगा आके. एंड आई वुड रियली लव टू हैव यू देयर. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल giving me this opportunity to talk to this wonderful group of students. Thank you.